خدا کی جو یہاں موجود ہے اور جس نے ہمارے لیے ہم سب کے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم اس کے قیمتی کلام کو سنیں۔ یہ جو کلام ہمیں دیا گیا ہے یہ نہ ہی عام ہے اور نہ ہی سستا ہے، یہ بیش قیمت ہے۔ ہلیلویا۔ ہم کرسمس کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھیں گے کہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں اور بڑی ہی ہم تازگی کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ ہم اس دن کو مناتے ہیں؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اس دن کے بارے میں، یہ وہ دن ہے جس میں خدا کا بیٹا سن آف گاڈ اس دھرتی پر آیا۔ یوں کہہ لیں کہ خدا زمین پر اترا۔ ہلیلویا۔ پہلے جب وہ اترتا تھا نا تو پہاڑ بھی کانپ جاتے تھے، لیکن اب وہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا ہے اور وہاں پر جانوروں کو بھی نہیں پتا کہ دنیا کا مکتی داتا آ گیا ہے، کسی کو نہیں پتا، بتایا جا رہا ہے۔ آج شام ہم 7 نبوتی الفاظ پر غور کریں گے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت کہے گئے۔ مختلف لوگوں نے یہ نبوتی کلمات، الفاظ ادا کیے، کیونکہ ہمیشہ خدا نبیوں کو، اپنے لوگوں کو جب الفاظ دیتا ہے تو وہ بولتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ورڈز ہیں، یوں کہہ لیں گاڈ اسپیکنگ، خدا بات کر رہا ہے، خدا بول رہا ہے، خدا کے الفاظ ہیں، خدا کی بات ہے، انسانوں کی یہ بات نہیں ہے، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا زمین پر آیا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا اپنے بیٹے کے جنم پر یا اس کی پیدائش کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، اور یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہم لوکا کی انجیل پہلا اور دوسرا باب، متی کی انجیل پہلا اور دوسرا باب، اسی میں سے ہم ان 7 نبوتی الفاظ کو سنیں گے جو کہے گئے، اور ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے۔ ان کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگی پر اپلائی کرنا۔ سن کر صرف علم اکٹھا نہیں کرنا ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس کو آپ اپنی زندگی پر اپلائی نہ کریں۔ علم کا ہونا کسی کو بچا نہیں سکتا، لیکن جب آپ اس علم کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ علم آپ کے لیے نجات اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ لوکا کی انجیل نکالیے گا، پہلا باب، اس کی ورس 67۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کی نہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ آمین۔ یہاں پر ہم زکریا کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کی باری تھی کہانت کی، اور جب وہ کہانت کے لیے خیمہ اجتماع کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جب وہ جاتا ہے تو وہاں پر خدا کا فرشتہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو واقعہ بائبل مقدس میں لکھا گیا، درج کیا گیا ہے، تحریر ہے، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور
اس کے اندر بڑے خوبصورت ہمارے لیے اسباق موجود ہیں کہ یہ واقعہ حقیقت میں اس کے اندر ایک ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے ان تمام نبوتی پروفیٹک ورڈز کے اندر، ان نبوتی باتوں کے اندر، اس کلام کے اندر بہت ہی حقیقت میں ایک مکاشفہ، ایک ایسی ہمارے لیے برکت کی، تازگی کی باتیں پنہا ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب زکریا کے پاس خدا کا فرشتہ آیا اس کی کہانت کی باری پر، جب وہ کہانت کا کام انجام دے رہا تھا تو لکھا ہے ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور سارے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ خدا کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے، تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اب جب زکریا سے فرشتے نے یہ بات کی ہے، اس کو یہ پیغام دیا ہے، ریسیو کیا ہے زکریا نے یہ پیغام، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، ایسا ہی ایک پیغام مقدسہ مریم کو ملا، وہ ایمان لائی، اس نے اس پیغام کو ریسیو کیا، وہ ایمان لائی۔ ایسا ہی ایک پیغام ابراہیم کو ملا، وہ بھی ایمان لایا، اس پیغام کو ایمان سے ریسیو کیا، اسحاق پیدا ہوا۔ یہ پیغام زکریا کو بھی ملا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہا۔ خدا کے فرشتہ نے اس کو میوٹ کر دیا، خاموش، اس کی زبان تالو کے ساتھ لگ گئی۔ اب یہ اسی وقت کھلے گی جب یوحنا پیدا ہوگا، اس کا نام یوحنا رکھنا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو خاندان میں کسی کا نام جون نہیں ہے، یوحنا نہیں ہے، اور میں یہ کیسے، یہ عجیب سا نام ہے، یہ کیسے میں اس کا نام یوحنا رکھوں؟ فرشتہ اس کو آ کر بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بھانج ہے، میری بیوی عمر رسیدہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے کیونکہ پیغام اس کو مل رہا ہے، فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے آگے راہ تیار کرے گا، ایلیا کی روح میں آگے آگے چلے گا۔ یہ بڑی ہی خوبصورت باتیں ہیں، یسوع کے پیدائش کے چوگرد یہ باتیں گھوم رہی ہیں، اور یہ باتیں بڑی خاص باتیں ہیں کیونکہ خدا اپنے بیٹے کی پیدائش کی تصدیق کر رہا ہے۔ 7 نبوتی الفاظ، 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور یہ 7 جو نبوتیں ہیں یا یہ ہولی اسپرٹ سے، خدا سے جو ان کو آگاہی ملی ہے، خدا کی بات ان کو ملی اور آگے وہ بتا رہے ہیں، اور خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کی برتھ کو کنفرم کر رہا ہے۔ یہ کنفرمیشن ہے خدا کی طرف سے کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا اپنے بیٹے کی پیدائش کی تصدیق کر رہا ہے۔ پہلی نبوت زکریا کی معرفت ہمیں ملتی ہے، اور یہ نبوت جو ہے یہ بیسیکلی خدا کے ورڈز ہیں، خدا کے الفاظ ہیں، اور اس کے اندر پہلی جو بات ہم نے بھی پڑھی ہے وہ ہے نجات، سالویشن۔ 67 ورس کے اندر زکریا روح سے بھر گیا، روح سے معمور ہو کر اس نے یہ بات کہی ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ اسرائیل کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والا ہے، اور یہی فرشتے نے پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کرسمس نجات کو پیش کرتا ہے کیونکہ یسوع مسیح ہی ہے نجات دینے والا، کیونکہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے۔ خدا کا اپنے بیٹے کو بھیجنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے، اور یہ ہم سب کے لیے نجات ضروری ہے، کیونکہ کرسمس
کہ اس پیغام کی جو پریورٹی ہے، اس پیغام کی جو اولیت ہے، وہ ہے جیزس، یسوع۔ یہ جو پیغام دیے جا رہے ہیں روح القدس کی تحریک سے، جو نبوت ہو رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے، یہ کرسمس کی جو اولیت ہے، اس پیغام کی جو خاصیت ہے، یا اس کا جو سمجھ لیں کہ مرکزی جو مضمون ہے، یا ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کے چوگرد گھومتی ہیں، کیونکہ پرائیورٹی اس کے بیٹے کے نام کی ہے، تاکہ جتنے بھی لوگ روئے زمین پر ہیں وہ سب کس کو پکاریں؟ یسوع کو پکاریں۔ یسوع کو پکاریں گے تو یسوع نجات دے گا، کیونکہ یسوع ہی نجات دینے والا ہے۔ سالویشن، نجات، ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا۔ لفظ یسوع، یہ بڑی غور سے سنیے گا بات، یسوع اور ایک لفظ ہے بائبل میں یشوع، جس کو اکثر ہم یشوا پڑھتے ہیں۔ انگلش بائبل میں، انگلش زبان میں اس کو جوشوا کہتے ہیں، لیکن یشوا جس کے معنی ہیں نجات، اور یسوع کے معنی ہیں نجات، لیکن یسوع کے معنی ہیں نجات دہندہ، نجات دینے والا۔ یسوع اور یشوع بیسیکلی ان دونوں کا مطلب کا جو نام کا جو مطلب ہے وہ نجات ہے، لیکن یسوع اور یشوع میں فرق ہے۔ انگلش میں، انگلش بائبل میں یا انگلش زبان میں اس کو جوشوا کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں پرانا عہد نامہ تحریر کیا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں۔ اب عبرانی زبان میں ہم دیکھتے ہیں اس کو یشوع، یعنی جب یشوع جسے ہم یشوا کہتے ہیں پیدا ہوا تھا، تب اس کا نام یشوا نہیں تھا، اس کا نام ہوسیا تھا، لیکن مقدس موسیٰ نے اس کا نام تبدیل کر کے یہوہ یعنی خدا، تو وائی ای یہوہ جو ہے اس کے نام سے، ہوسیا کے نام سے پہلے اس نے جس طرح یہوہ ہے وائی ای، اس کو عبرانی میں جہوشوا، جس کو ہم یشوا پڑھتے ہیں، سو اس نام کو خدا نے تبدیل کیا، جہوشوا کو خدا نے بدلا، اور اس کے اندر سے جو او ایچ ہے انگلش میں، او ایچ اس کو ختم کیا، کیونکہ عبرانی میں اس کو جہوشوا اور انگلش زبان میں یشوا ہے، جس کے معنی ہے نجات۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ خدا نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ جو جہوشوا تھا، کیونکہ یہوہ کے لیے جو ورڈ یوز ہو رہا تھا وہی موسیٰ نے ہوسیا کے آگے جہوشوا لکھ دیا جب اس کو، تو جب ہم یشوا اس کو پڑھتے ہیں یا جہوشوا عبرانی میں اس کو کہتے تھے، تو اس کا تعلق ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ تھا، اس لیے خدا نے اس کو چینج کیا اور اس کے اندر سے ایچ او کو جو ہے وہ خدا نے ختم کیا، اور اس کو جہوشوا کی جگہ یشوا، کیونکہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہم ڈائریکٹ جیزس کو خدا کہتے ہیں، یہ صرف یسوع کے ساتھ ہی سوٹیبل ہے، اچھا لگتا ہے، کیونکہ یسوع کے معنی ہیں I am God, I am your salvation۔ یسوع ہماری نجات ہے، اس لیے یشوا کے ساتھ جو جہوشوا تھا اس کو خدا نے تبدیل کر کے اس کو جوشوا، اور یسوع جس کے معنی ہیں I am God your salvation، کہ میں خدا تمہاری نجات ہوں، I am، اس کو بھی کہا تھا موسیٰ کو، میں ہوں سو ہوں۔ اسی لیے یسوع ہمیں اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، اور یہ صرف یسوع ہی کہہ سکتا ہے، یشوا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یشوا میری اور آپ کی طرح انسان تھا، بے شک اس کے نام کے معنی نجات ہے، لیکن یسوع کے نام کے معنی نجات دینے والا، خدا ہماری نجات ہے۔ ہاللیلویا۔ سو
पहला जो वर्ड हमने सीखा, जो प्रोफेसी यहाँ पर हुई है, ज़िक्रिया ने रूहुल कुद्स से भरकर नबूवत की, और वो ये थी कि खुदा ने नज़र की है, छुटकारा दिया है, खुदा हमारी निजात। इंग्लिश बाइबल में साल्वेशन का लफ्ज़ जो है, निजात का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है। यीशु बार बार ये कहता है, मैं दरवाज़ा हूँ मैं, ताकि हम इस बात को हरगिज़ ना भूलें। इसलिए यीशु बार बार रिपीट कर रहा है कि मैं हूँ। यानी ये लफ्ज़ उस वक्त इब्रानी का खुदा जिसने मूसा को बुलाया, मूसा को पैगाम दिया और मूसा के हाथ से एक बड़ा छुटकारे का, रिहाई का काम किया कि कौम इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। तब मूसा ने पूछा था कि अगर वो पूछे तो मैं क्या कहूँ, किसने मुझे भेजा है? तो कहना कि मुझे उस खुदा ने भेजा है। वो कहता है, मैं हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। यीशु भी खुदा का बेटा खुदा है, जो खुदा में से निकला और आया है, और खुदा इसकी कंफर्मेशन कर रहा है, खुदा तस्दीक कर रहा है, बता रहा है कि ये मेरा बेटा है। खुदा में से खुदा निकला और आया है, कलमा मुजस्सम हुआ है। दूसरी जो नबूवत है वो लूका की इंजील पहला बाब उसकी 30वीं आयत को 30 वर्स है, उसको जरा पढ़िएगा। दूसरी नबूवत, दूसरा जो प्रोफेटिक वर्ड है वो है फेवर। फरिश्ता ने उससे कहा, आय मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। फेवर ऑफ गॉड, इंग्लिश बाइबल में लफ्ज फेवर यूज हुआ है। और ये जो लफ्ज है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पुराना अहदनामा इब्रानी जुबान में और नया यूनानी जुबान में है, यहाँ यूनानी जुबान में जिसका अंग्रेजी बाइबल में तर्जुमा हुआ वो फेवर किया गया है तर्जुमा। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल साथ साथ हो तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। वर्ड यूज हुआ है फेवर ऑफ गॉड, खुदा का फजल जो उस पर हुआ है। हम खुदा का यकीन करते हैं कि जिसने यूनानी जुबान को चुना, ये खुदा की चॉइस थी, ये खुदा का इंतखाब है। खुदा ने यूनानी जुबान को चुना जिसमें उसने नए अहदनामे को तहरीर करवाया और यूनानी जुबान में ये लिखवाया। यहाँ फेवर हकीकत में यूनानी जुबान के लफ्ज कैरिस, अक्सर लोग बेटियों के नाम रखते हैं, ठीक है, कैरिस, और इस तरीके से 6 मरतबा इसका तर्जुमा जो है वो फेवर किया गया है और 130 मरतबा इसका तर्जुमा जो है फजल किया गया है। अब ये सब बताने का मकसद क्या है? जो बातें हम कर रहे हैं कि फेवर, फजल, ये सारा बताने का मकसद क्या है? ताकि लोग यीशु को पुकारे और यीशु मसीह को जान सकें और ये कह सकें कि खुदा हमें फेवर देता है या उसके फजल के वसीला से हम जो है वो निजात पाते हैं। ये सब बताने का मकसद ये है ताकि हम जान सकें। और इंग्लिश में इसको फजल के लिए वर्ड ग्रेस भी यूज हुआ है और हम ग्रेस को, फेवर को खुदा की आंखों में देख सकते हैं। खुदा की आंखों के अंदर हमें ये फेवर जो है वो नजर आती है। आकर वो पैगाम दे रहा है कि मुबारक है तू जिस पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। पैदाइश 6 बाब में हम मुकद्दस नूह के बारे में देखते हैं। सारी दुनिया को खुदा ने पानी से तबाह कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा की आंखों के अंदर ये रहम, ये फजल, ये तरस, ये फेवर हम खुदा की आइज के अंदर देख सकते हैं। और हमें मालूम होता है कि खुदा जो कुछ कह रहा है, जब उसका बेटा पैदा होने को था तो उसने कहा निजात, फजल, ग्रेस, फेवर। हाँ, मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को समझें कि ये फजल का वक्त है और हमें इसके अंदर दाखिल होना है। ये कौन सा वक्त है? फजल का वक्त है। और हमें इसके अंदर, इसके क्या मायने हैं कि हमें इसके अंदर दाखिल होना है?
जैसे कोई भी शख्स पानी में गोता लगाए बगैर गीला नहीं होता, इसी तरह कोई भी शख्स फजल में गए बगैर या फजल में गोता लगाए बगैर या फजल के मातहत हुए बगैर पाक नहीं हो सकता। जिस तरह पानी उसमें गोता लगाएं तो वो आपको गीला करता है, इसी तरह जब फजल में आप जाएंगे तो वो आपको पाक करता है। इसलिए खुदा के कलाम में ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये हमें एक बड़ा खुदा ने मौका दिया है कि हम पाक बने। लेकिन आज दुनिया में बड़ी गहमा गहमी है, लोग बहुत बिजी हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फजल के मातहत हो सकें, या जिस तरह पानी में गोता लगाकर लोग गीले होते हैं इसी तरह वो फजल में गोता लगाकर पाक बने, इतना टाइम लोगों के पास नहीं है। तीसरी जो बात है, तीसरी पेशनगोई या नबूवत जो लफ्ज है वो है ब्लेसिंग। लूका पहला बाब उसकी 39वीं आयत 39 वर्स है। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर यह फसल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई, और इससे पहले हमने पढ़ा कि जिक्रिया रूहुल कुद्स से भर गया और बच्चा उसके रहम में खुशी के साथ अंदर उछला। और हम इस सारी जो है वाकया से वाकिफ हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसकी मौजूदगी, उसका आना हमें खुश करता है। ठीक है, इसके लिए खुशी और लफ्ज इंग्लिश का हैप्पी, जीसस केम टू मेक यू हैप्पी। यीशु हमें खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, खुशी देने के लिए आया। जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में आई, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और जीसस जो है, यकीन जाने यीशु मसीह है ही खुशी और शादमानी। और ये यहाँ पर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, तीसरा लफ्ज जो है वो है बरकत, ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड। जब लिखा उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। तो ये वहाँ पर उसका जाना, और फिर अलिशबा रूहुल कुद्स से भरकर जो बातें कह रही है वो खुदा की तरफ से हैं। ब्लेस के लिए इब्रानी जो लफ्ज है मैक्यूरियस जो है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं हैप्पी, खुश। यहां पर ब्लेस के लिए, और ये ब्लेसिंग्स, ये खुशियां हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन सात अल्फाज में से एक लफ्ज है हैप्पी, खुशी, ब्लेस्ड। इब्लीस के जितने भी झूठ हैं उनमें से एक ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि अगर आप यीशु के पास आएंगे तो यीशु आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। यीशु के पास कोई खुशी नहीं है। इसलिए लोग देखें, खुश रहने के बहाने लोगों के पास बहुत हैं। तफरीगाहों में जाते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, गपशप लगाते हैं, और वो समझते हैं कि इन लफ्ज़ों में, इन जगहों पर जाने से, टीवी फिल्मों में, गानों में हमें शादमानी मिलती है, खुशी मिलती है, बरकत मिलती है। तो इब्लीस ये चाहता है कि लोग उस तरफ को मूव करें
जीसस की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो झूठ बोलता है कि अगर आप यीशु के पास जाएंगे तो यीशु आपको खुशी नहीं दे सकता। ये इब्लीस का बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कभी भी खुशी हासिल नहीं हो सकती जब तक आप यीशु के पास ना आए। यीशु खुश रखता है, यीशु ही खुश रख सकता है। और जो लोग कहते हैं कि ये रास्ता एक मजाक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीसस इज नॉट अ फन। यीशु कोई तफरी नहीं है, कोई मजाक नहीं है। लोगों ने बेसिकली यही समझा हुआ। कई मौकों पर लोग इस तरीके से जीसस को या कलाम को, उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हैं, स्पेशली किसी ऐसे इवेंट पर जैसे शादी या और कोई ऐसी तकरीबात हो, तो वहां पर ना वो कलाम को कुछ समझते हैं और ना जीसस को कुछ समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो लम्हे हैं जिनमें हम बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े हैप्पी हैं, शायद इस माहौल ने, इस वक्त ने जो है हमें ये खुशी दी और खुश कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिकली हमारी जो बरकत हैं, खुशियां हैं, वो यीशु के सबब से हैं। लिखा है, जैसे ही तेरी आवाज मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। इब्लीस की मत सुने। इब्लीस के झूठ में जर्रा भर भी सच्चाई नहीं है। वो झूठ बोलता है कि अगर आप यीशु के पास आएंगे तो यीशु आपको खुश नहीं रख सकता। ये उसका झूठ है और उसके झूठ का यकीन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसके झूठ का यकीन करेंगे आप कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यीशु के पास आने वाला ही हकीकी खुशी को हासिल कर सकता है। यीशु के पास आने वाला शख्स, और अगर यीशु के पास नहीं आएंगे तो फिर हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु के पास जिंदगी है, यीशु के पास खुशियां हैं और यीशु ही हमें खुशियां दे सकता है। कई लोग कहते हैं कि बस इधर उधर वक्त गुजारो, जिंदगी गुजारो, कल को मर जाना, बस खेल के, हंस के, शोर शराबा करके, इधर उधर धूम मचा के, ये खुशियां हमारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु हमारी खुशी है। खुशियां और बरकत ये खुदावंद यीशु मसीह से आती है। किससे आती है? आए बाइबल में देखें, इमाल की किताब 3 बाब 26 आयत, खुदा के खादम से इल्तिमास है, पढ़िएगा। इमाल 3:26। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। खुदा ने जीसस को भेजा इसलिए है कि वो हर एक को उसकी बदियों से हटाकर क्या दे? उनको बरकत दे। इब्लीस झूठ बोलता है कि यीशु आपको बरकत नहीं दे सकता। इब्लीस झूठ बोलता है कि यीशु आपको खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि हर एक को उसके गुनाहों से हटाकर उनको बरकत दे, उनको खुशियां दे। और ये नबूवती जो अल्फाज हम बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि जो पॉइंट्स, ये जो नबूवतें, ये बातें आप सुन रहे हैं, इस कलाम को अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिए। फिर इस कलाम के सबब से आपकी जिंदगी के अंदर बरकत, शादमानी, निजात आएगी। और चौथा जो पॉइंट है वो है गाइडेंस। आप देखें मत्ती की अंजील 1 बाब उसकी 19वीं आयत। ये जरा कुछ हवाले हैं, जरा सीक्वेंस के साथ इनको पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 1 बाब 19 आयत को पढ़िएगा। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। दूसरे बाब की 13वीं आयत मत्ती की अंजील। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। 19वीं आयत भी पढ़ दें। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावन के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ,
इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बहुत शुक्रिया। जब हम इस पैसेज को बाइबल को पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि रहनुमाई की, लेकिन इन हवाला जात को पढ़ने से हमें पता चलता है कि खुदा यूसुफ की रहनुमाई कर रहा है। पहले बताया कि इस बच्चे को लेकर मिस्र को चला जा क्योंकि इसकी जान को खतरा है। फिर बाद में फिर खुदा की तरफ से रहनुमाई हुई, अब इसको ले जा क्योंकि बादशाह जो है वो मर चुका है, अब कोई डर नहीं है। अब जानते हैं हेरोदिस ने क्या किया, 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया। चौथा जो पॉइंट है वो है गाइडेंस, रहनुमाई। और खुदा, अगर जब हम इन हवालों को पढ़ते हैं तो हमें इनसे पता चलता है कि खुदा यूसुफ की रहनुमाई कर रहा था। और ये चौथा नबूवती लफ्ज है। यीशु का दुनिया में आने का जो मकसद है वो है लोगों की रहनुमाई करना। क्या मकसद है यीशु का दुनिया में आने का? लोगों की रहनुमाई करना, गाइड करना। वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस शहर में जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि खुदा का रूह उनको मना करता है फलां जगह ना जाएं, खुदा का रूह भेजता है वहां जाएं, और किस तरीके से खुदा उनको गाइड कर रहा है। यीशु का दुनिया में आने का जो मकसद था वो था मुझे और आपको, सारी दुनिया के लोगों को गाइड करना। यकीनन मैं और आप इस पैगाम को समझ रहे हैं कि क्रिसमस के क्या मायने हैं। क्रिसमस के क्या मायने हैं? निजात, रहनुमाई, फेवर ऑफ गॉड, ठीक है। ये सारी चीजें ये क्रिसमस के हवाला से ही हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के बगैर मेरा और आपका जो है ना क्रिसमस वो अधूरा है। खुदा में निजात देता है, बरकत देता है, रहनुमाई करता है, क्योंकि वो निजात देने वाला है, निजात देने के लिए आया, बरकत देने वाला है। वो हमें बरकत देता है, वो रहनुमाई करने वाला है और हमारी रहनुमाई करता है। हर रोज हर दिन वो हमारी रहनुमाई करता है ताकि हमारे घराने बरकत पाएं और तरक्की करें। इसलिए खुदा हमारे जो है रहनुमाई करता है। खुदा ख्वाब के जरिया से भी रहनुमाई करता है, खुदा फरिश्तों को भेजकर भी रहनुमाई करता है। खुदा हर तरीके से हमारी रहनुमाई करता है। हम इस किताब मुकद्दस के जरिया से भी, इसको पढ़कर भी खुदा से रहनुमाई हासिल करते हैं। आए 5वें जो नबूवती लफ्ज है उस पर गौर करेंगे। लूका 2 बाब 8वीं आयत को देखिएगा। लूका 2 बाब 8वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदा उनका जलाल उनके चिगिर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हुआ है खुशी, जॉय। खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद हर एक को खुश करना, खुश रखना है। और आप जानते हैं कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो तो कहते हैं क्या बात है आज आप बड़े खुश हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, या हमें वजह बताएं जिस वजह से आप बड़े खुश हैं। कोई वजह तो होगी कि जो आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कह लें कहावत भी है या कोटेशन समझें, जीसस इज़ द रीज़न फॉर द सीजन। हमारी खुशी की जो असल वजह है वो मेरा और आपका यीशु है, अक्सर लोग कहते हैं। और इस सीजन की जो क्रिसमस सीजन चल रहा है, दिसंबर 1 से ही ये सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो इस सीजन का जो रीज़न है वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। कि हकीकत में हमारी खुशी की असल जो वजह, रूट्स जो है, बेस जो है, वो मेरा और आपका निजात दहिंदा हमारा खुदावंद यीशु जीसस है।
अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं तो आपके पास कोई खुशी नहीं है। कई जीसस के बगैर ही खुशियां मना रहे, और मुझे नहीं पता खैर उनकी खुशी किस तरह की है, वो कैसे खुश रहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बड़ी खास बात करना चाहता हूं इस खुशी के हवाला से कि ये एक बड़ी ही आला बात है, बहुत ही समझने वाली बात है कि जो खुशी है ये आपके हालात पर डिपेंड नहीं करता। हालात कैसे हैं, इब्लीस बगैर ब्रेक लगाए अटैक पर अटैक करता है। अक्सर जब ट्रेजेडी जिंदगी के अंदर हो जाती है, कोई अलमिया, कोई हादसा, और अक्सर क्रिसमस के सीजन के दिनों में ना ऐसा बहुत ज्यादा होता है। सीजन जब शुरू होता है या दिसंबर के महीने में हमें बहुत ऐसे अलमिया सुनने को मिलते हैं। एक तरफ हम खुशी मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है। समटाइम जो है वो फाइनेंशियली या हेल्थ क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं और बड़े मामलात बन जाते हैं, और उन मामलात के जरिया से जिनमें से हम गुजर रहे होते हैं उन अलमिया के अंदर से, उस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि शैतान उन अलमिया या उन ट्रेजेडीज के जरिया से अटैक करता है, वो हमले पर हमले करता है और इस कदर परेशानी क्रिएट करता है, इस कदर डिसअपॉइंट करता है, इस कदर नाउम्मीद कर देता है, मायूस कर देता है कि खुशी ही नहीं रहती। खुशी परेशानी में, अफसुर्दगी में, नाउमीदी में तब्दील हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो ऐसा कब करता है, किसी खानदान के जरिया से वो इस तरह करता है जब खानदान में कोई मुश्किल परेशानी आती है, किसी पर बीमारी आ जाती है, हार्ट अटैक आ जाए या कुछ और ऐसा हादसा हो जाए, तो जो लम्हे चंद मिनट्स जो हैं उसके तन्हाई के होते हैं, उसमें इब्लीस बुरी तरह से अटैक करता है और उसको मायूसी की दलदल में धकेल देता है, और इस कदर उसको वो जो है नाउम्मीद कर देता है कि खुशी के मायने भी वो शख्स जो है भूल जाता है और अफसुर्दगी में वो गिरफ्तार हो जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ मसीही एक ऐसे लोग हैं जो दुखों में भी खुश रहते हैं। हालेलुया। सिर्फ वाहिद मसीही हैं, जितनी बड़ी मर्जी ट्रेजेडी हो जाए उनके साथ, प्रॉब्लम हो जाए, मुश्किल हो जाए, वो आपको खुश नजर आएंगे और वो कहते होंगे थैंक्स गॉड। वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, थैंक्स गिविंग वही लोग करते हैं, क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो अपने दुख में, मलाल में कलाम की कुव्वत और कुदरत से भर जाते हैं। कलाम में लिखा है कि तुम और लोगों की तरह ना उम्मीद ना हो, गम ना करो। हमें खुदा का कलाम तसल्ली देता है और हम दूसरे लोगों से डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारी जो खुशी है उसकी खुशी की वजह जो है वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, हालात नहीं है, बल्कि हमारी खुशी की जो रीजन है, वजह है, वो यीशु है। हालेलुया। तो हमारी खुशी की जो रीजन है वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, हालात और वाक़यात नहीं है। हमारी खुशी की जो वजह है वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। छठी नबूवत को देखेंगे, रिडेम्पशन, लूका 2 बाब 36वीं आयत को देखिए। हालेलुया। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें
एक नबिया के बारे में जिसका नाम हन्ना है मिलता है, और ये उम्र रसीदा औरत थी। छठा जो पॉइंट है या नबूवत है, नबूवती लफ्ज है, वो है रिहाई। किस चीज के मुंतजिर थे ये? रिहाई के, छुटकारे के। और यहाँ पर रिडेम्पशन जो लफ्ज है इसके मायने हैं छुटकारा या रिहाई, लेकिन इसके साथ एक इंग्लिश का भी वर्ड है डीम, जिसके ये मायने हैं बाइंग या परचेज करना या बाय करना। खुदावन यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि उस इंसान को जो बागे अदन में खो चुका था, आदम और हवा और उसकी औलाद, ये एक बहुत बड़ा लॉस था, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। रिडेम्पशन, रिडीम, रिस्टोर, रीन्यू करने के लिए जीसस आया, और वो हमारे जहनों को, जीसस मेक योर माइंड न्यू अगेन, वो दोबारा इसको हमारे जो ज़हन था, वहां पर आपको पता है क्या हुआ? जाकर इब्लीस ने क्या कहा? हवा के साथ जो बातें की थी, आप सब उस स्टोरी से, उस वाकया से वाकिफ हैं, और किस कदर ज़हन जो था उसको उसने तबाह किया, बर्बाद किया, उनकी जिंदगी, खानदानों को बर्बाद किया, और आगे उसके आने वाली नस्लों को भी जो था बर्बाद कर दिया। लेकिन यीशु मसीह का यहाँ आने का जो मकसद है, जो हन्ना के वसीला से हमें बात मिल रही है, वो है रिडेम्पशन, यानी कि खुदा दोबारा से हर चीज को रीन्यू करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए, दोबारा रिहाई देने के लिए वो आ रहा है। क्योंकि लिखा है उसी घड़ी, इंस्टेंट, यानी फौरी तौर पर देखें कि उसके बेटे की पैदाइश होने वाली है, और ये बिल्कुल ठीक वक्त पर वहां पर मौजूद है। और ये जो नबिया थी, और खुदा जो है अपनी बात अपने लोगों को, यानी नबी के मुंह से जो निकली हुई बात होती है, नबी के मायने हैं खुदा की बात, जो नबी कहता है, खुदा की बात लोगों से कहता है। और यहाँ पर ये नबिया खुदावन की बात को कर रही है, और खुदा ने हमें दोबारा खरीदने के लिए यीशु को भेजा। पहले उसने बनाया था, फिर उसने हमें खरीदा है, अगेन उसने हमें परचेज किया है, हमारी कीमत उसने अदा की है, और कीमत देकर उसने मुझे और आपको खरीदा है। आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी, एक लड़के ने कश्ती बनाई, और उसको देखने के लिए कि बहुत खूबसूरत है, तो उसको मैं दरिया में छोड़ता हूँ, देखता हूँ कि मेरी कश्ती पानी में चलती हुई कैसी दिखाई देती है। जब उसने उसको पानी में छोड़ा तो वो बहती हुई उससे बहुत दूर निकल गई। वो बहुत परेशान हुआ, घर आ गया। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने बाप के साथ बाजार गया, तो इसने एक बहुत बड़ी शॉप के अंदर, एक जबरदस्त शोकेस के अंदर टॉप पर अपनी उस हाथ की बनाई हुई कश्ती को देखा, और अपने बाप से कहा कि ये कश्ती मुझे चाहिए। बाप गया और कीमत मालूम की, और उसकी कीमत अदा करके वो कश्ती लेकर अपने बेटे को दी। और जब बेटे ने उस कश्ती को हाथों में लिया, तो कश्ती से कहा, पहले तो मैंने तुझे बनाया था, लेकिन अब मैंने तुझे खरीदा है। खुदावन यीशु का इस दुनिया में आने का जो मकसद था, वो मुझे और आपको खरीदना, हमारी कीमत देना, और उसने हमें कीमत से खरीदा है। यहां पर एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लिखा है कि वो अपनी शादी के बाद 7 साल जो थी वो एक शौहर के साथ रही, और उसके बाद उसका शौहर फोत हो गया, और 84 साल बगैर शौहर के, यानी बेवा के तौर पर जिंदगी गुजारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस औरत की उम्र तकरीबन 14 साल होगी, और इसने अपने शौहर के साथ 7 साल शादी के बंधन में गुजारे, तो 21 साल उसकी उम्र हो चुकी होगी जब उसका शौहर मर गया। उसके बाद 84 साल, यानी टोटल 105 साल इसकी उम्र थी जब ये नबूवत कर रही है और कह रही है
ये हैकल से जुदा नहीं होती थी। कम से कम 105 साल की ये थी। और शमौन काहिन जो था, इसकी उम्र 112 बरस थी। ये भी एजड था, ज़ईफ था। ये दो लोग हैं जो हमें यहाँ पर उम्र रसीदा नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी उम्र मैटर नहीं करती कि खुदा आपको बुजुर्गी में इस्तेमाल नहीं करेगा। खुदा आपको हर एज में हर तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और शमौन काहिन को और हन्ना को, जो यहाँ पर एजड हैं, उम्र रसीदा हैं, उनको खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों के जरिया से खुदा नबूवत कर रहे हैं। इन दोनों को खुदा ने अपने बेटे की पैदाइश के वक्त चुना। लिखा है यहाँ पर, अगर आप बाइबल में पढ़ें खुदा के बंदे के बारे में, तो शमौन, ये वर्स 26 है मेरा ख्याल, 25, ये भी ऐन उसी वक्त रूह कुद्स इसको लेकर आ रहा है। खुदा इनको बिल्कुल उस टाइम पर लेकर आ रहा है जब उसका बेटा दुनिया में आने वाला है, उसका बेटा पैदा होने वाला है। और ये बिल्कुल टाइम पर, और बाइबल भी बयान करती है कि जब वक्त पूरा हो गया तो उसका बेटा कुंवारी से पैदा हुआ। उस टाइम पर खुदा इनको लेकर आ रहा है। और देखें इसके अंदर हम खुदा की मोहब्बत को, कि उसने कीमत देकर मुझे और आपको खरीदा है। होशिया नबी का सहीफा देखिएगा, उसका पहला बाब, उसमें खुदा कह रहा है कि तू जाकर एक बदकार बीवी ले। और खुदावन यहां पर तीसरे बाब की पहली आयत में दोबारा उसको कह रहा है कि तू दोबारा जाकर उस बदकार बीवी के पास जा और उससे मोहब्बत रख। देखें, हम जितने मर्जी गुनाह में गिर जाएं, जितने मर्जी जो है गुनाह में हम बार बार जो है, अगर बेशक उसमें चले जाएं या गिर जाएं, मैं नहीं चाहता कोई इस तरह करे जाए, लेकिन अगर कुछ हो जाता है आपकी जिंदगी में ऐसा, तो इट्स डजंट मीन कि आपके लिए बहाली या वापसी नहीं है। खुदावन के कलाम में हमें यहां पर मिलता है, होशिया को उसने कहा बदकार बीवी ले, और फिर उसको कहता है कि उससे मोहब्बत रख। खुदावन से मोहब्बत रखने का उसको कह रहा। और यहां पर होशिया जीसस की रियल तस्वीर को पेश करता है। इस्राएल से खुदा ने बड़ी मोहब्बत की, बार बार वो बुतों के पीछे, गैर मबूदों के पीछे गई, बार बार उसने गैर मबूदों की पूजा प्रस्तिश करके, बाइबल कहती है उसने ज़ना किया, लेकिन खुदा ने बार बार उस बदकार औरत को, बार बार उस कौम को सीने से लगाया। और आज भी खुदा उनसे प्यार करता है। वो कहता है कि मैं तुझे रिहाई दूंगा और तुझे दोबारा खरीद लूंगा। हम बार बार भी गुनाह में गिरे तो खुदा हमें फिर संभालता है, फिर उठाता है, फिर सीने से लगाता है। होशिया पहले बाब में कहता है बदकार बीवी ले, और तीसरे बाब में कहता है कि उससे मोहब्बत रख। जीसस की रियल पिक्चर पेश कर रहा है होशिया। सातवीं बात को देखिएगा, नबूवत की बात, लूका दूसरा बाब उसकी 25वीं आयत। लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूहुल कुदस उस पर था, और उसको रूहुल कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमौन ने उनके लिए दुआएं खैर की
اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائے اور عاشر کے قبیلہ میں سے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر ہمیں ساتویں جو نبوتی بات ملتی ہے وہ ہے پیس، سلامتی، تسلی، اور یسوع ہے پرنس آف پیس، سلامتی کا شہزادہ یسوع ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں بجائیں ذرا یسوع کے لیے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں شمعون کے وسیلہ سے یہ اس نبوت کو بہت ہی زبردست یہاں پر یہ بات ہے کہ بے شک شمعون عمر رسیدہ تھا، ضعیف ہو چکا تھا، بزرگ تھا، 112 سال اس کی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود خدا شمعون کاہن کو استعمال کر رہا ہے، اس کے وسیلہ سے کلام کر رہا ہے۔ اور یہ پیغام، یہ حصہ میرا بڑا فیوریٹ ہے، مجھے بڑا یہ پسند ہے، تسلی، سلامتی، اطمینان، پیس۔ آج لوگوں کی بیسیکلی زندگی کے اندر پیس نہیں ہے، زندگی میں تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ اطمینان، سلامتی لے کر آیا ہے، تسلی لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ تسلی کا سرچشمہ ہے۔ یسوع امن اور سلامتی لایا ہے۔ عمر جو ہے نا، کوئی بھی عمر یہ میٹر نہیں کرتی کہ ہم کس عمر میں استعمال ہوں گے، کس عمر میں نہیں ہوں گے۔ عمر جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں اور کہاں پر جا کر خدا آپ کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دیکھیں، شمعون بوڑھا تھا، 112 سال، نہایت ضعیف تھا، اور مریم بہت ینگ تھی، ٹھیک ہے، جس کے پاس فرشتہ پیغام لے کر گیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں اور خدا آپ کو کہاں پر استعمال کرے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساتوں یہ جو پروفیٹک ورڈز ہیں، نبوتی الفاظ، ہم اس کے اندر گروپ دیکھتے ہیں۔ اب جیزس کے جو آنے کا مقصد ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ جیزس کیوں آیا۔ شمعون کاہن جو ہے وہ پروفیسی کر رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ نبوت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ ہمیں چرواہے نظر آتے ہیں جو میدان میں اپنے غلہ کی غلہ بانی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں 2 گروپ نظر آتے ہیں، ایک گروپ عورتوں کا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ مردوں کا ہے۔ عورتوں میں مریم، الشبا اور حنا، 3 عورتیں، اسی طرح 3 مرد، ہمیں زکریا، یوسف اور شمعون کاہن، یہ ہمیں 3 مرد نظر آتے ہیں۔ اب 3 مرد 3 عورتیں، ہمیں خدا کے کلام میں سے جاننے کی ضرورت ہے یسوع کیوں آیا۔ لکھا ہے اب جو مسیح میں ہے، لکھا ہے نہ کوئی مرد رہا نہ عورت۔ اب مسیح میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، یہاں پر 3 عورتیں 3 مرد ہیں، لیکن یسوع کیوں آیا؟ یسوع دنیا میں چیزوں کو درست کرنے کے لیے آیا، ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اور شمعون، تاکہ یہ جو کسی قسم کا امتیاز جو ہے نا، رنگ، نسل، قوم، مذاہب، یہ سارا کچھ یسوع ختم کرنے کے لیے آیا۔ اسی لیے اس نے کہا جا کے ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، تمام نیشنز کے لیے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے۔ شمعون نے یہ نبوتی الفاظ براہ راست ڈائریکٹلی مریم سے کہے۔ اگر آپ اس کی غالباً 34 یا 35 آیت ہے کہ تیری جان، 35 ورس ہے، تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی، چھید دی جائے گی۔ مقدسہ مریم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع صلیب پر تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور یوحنا سے کہا آج سے یہ تیری ماں ہے، اس کو اپنے گھر لے جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اس وقت تک مر چکا تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور
मुकद्दसा मरियम ने पहले अपने शौहर को खोया, ठीक है, और अब बतौर बेवा यीशु की सलीब के आगे खड़ी है, और अब उसका बेटा भी जो है वो अपनी जान दे रहा है सलीब पर, और अब वो अपने बेटे का भी बदनी तौर पर जो है वो अपने बेटे को भी खो रही है। और ये उसके लिए एक बड़ा तकलीफ दे अमल था, और ये हम जानते हैं कि ये सारा मामला जो कुछ सलीब पर हो रहा था, मुकद्दसा मरियम के लिए इसको बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन यीशु सलामती का शहजादा है, तसल्ली का, इत्मीनान का सरचश्मा है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि बेशक हमारी जिंदगी के अंदर जितनी मर्जी मुश्किलात हों, यीशु हमारी सलामती है। ही इज प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का, तसल्ली का वो शहजादा है, अमन का शहजादा है, वो बादशाह है। यीशु ही हमारी तसल्ली है। हम क्रिसमस के लिए अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हन्ना भी वहां पर गई एट अ टाइम, खुदा ने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उसकी आगाही की, रहनुमाई की, और वहां पर जाकर लिखा है खुदा का शुक्र करने लगी। थैंक्स गिविंग इसीलिए पूरे वर्ल्ड में है कि हम इस क्रिसमस के लिए, इस सीजन के लिए अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए हमने जो ये 7 नबूवती अल्फाज पढ़े और सीखे हैं, ये हमने क्यों सुने, क्यों सीखे, क्यों पढ़े? क्योंकि हमें जरूरत है नजात की, हमें जरूरत है बरकत की, हमें जरूरत है रहनुमाई की, हमें जरूरत है खुशी की, हमें जरूरत है रिहाई की, हमें जरूरत है सलामती की। हालेलुया। इसीलिए हमने पढ़े। और यीशु का आने का मकसद ये था कि वो हमारी रहनुमाई करे, हमें नजात दे, और हमें खुशी अता करे, हमें सलामती अता करे, और ये तमाम यीशु के आने के मकसद हमें बरकत दे। ये उसके आने के, उसके बेटे के आने के, जमीन पर आने के, उसके पैदा होने के जो थे ये मकसद थे। उसके पैदा होने का मकसद ये था कि मुझे और आपको शादमानी दे, हमेशा की जिंदगी दे, निजात दे, और हमारे पास खुश होने की सबसे बड़ी वजह मेरा और आपका यीशु है। इसीलिए हम क्रिसमस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़े ही हम जज्बे के साथ, पैशन के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु दुनिया में क्यों आया। हालेलुया, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी में हर एक आंख बंद हो जाए। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें, और इस पैगाम के लिए जो हमने सुना है, आए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। हालेलुया।